Dear students, this video lecture is created by Department of Economics, Raghunath Girls Postgraduate College. I'm Dr. Geeta and I'll be discussing with you certain concepts of economics like demand, law of demand, supply, law of supply, and market equilibrium. क्योंकि अधिकांश छात्राएं हिंदी माध्यम से है, इसलिए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हुए मैं आपके साथ इन विषयों पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि मांग किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की मांग से तात्पर्य है कि हम उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हैं और हम उस वस्तु को खरीदने के लिए क्रय शक्ति भी रखते हैं। That means we have a wish to buy that good as well as the purchasing capacity to buy that good, and we actually want to spend money to purchase that good. इसके पश्चात हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये है उस वस्तु का प्राइस यानी कि उस वस्तु का मूल्य। सेकंड पॉइंट इज उस व्यक्ति की इनकम जो किसी भी वस्तु को खरीदना चाहता है। थर्ड पॉइंट इज अन्य सभी वस्तुएं जो उसकी सब्स्टिट्यूट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती हैं, अर्थात उस वस्तु की स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं, उनका मूल्य भी या उनका प्राइस भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उस वस्तु की डिमांड को तय करने में। अगला बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नंबर ऑफ बायर्स, अर्थात कितने लोग हैं जो उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ अनिश्चितताओं का भी अपना एक महत्व होता है किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने में। ये सारे फैक्टर्स किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। These factors are called as the determinants of the demand. डिमांड की या मांग की परिभाषा और उसके फैक्टर्स के बारे में बात करने के पश्चात जो अगला मुख्य बिंदु आता है वो होता है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। Law of demand says that there is inverse relationship between price and quantity demanded. मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात a decrease in the price of a good, all other things held constant, will cause an increase in the quantity demanded of the good. इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु के प्राइस गिरने पर अन्य सभी बातें अगर समान रहे तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। Next point is an increase in the price of a good, all other things held constant, will cause a decrease in the quantity demanded of the good. इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो अन्य सभी फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पर उस वस्तु की मात्रा में, मांगी गई मात्रा में कमी होगी। In all, we can say that there is inverse relationship between price and quantity demanded. If price increases, quantity demanded reduces, and if price reduces, quantity demanded increases. Now, how can we explain that this is a law? This is a law because the psychology of human, the purchasing behavior of human is matters in a particular way. The law of diminishing marginal productivity the law of diminishing marginal utility is the reason behind this kind of the behavior or this relationship between price and quantity demanded. When we go on increasing consumption of goods and services, as we move forward, we feel less satisfaction with successive consumption of goods and services. As a result, we want to pay less. So for every next unit of the good and service, we want to pay less because we receive less satisfaction out of it. This is the main reason. This psychology is the main reason behind the law of demand and inverse relationship between price and quantity.
With the help of this graph, we can see that on vertical axis we have taken price, on horizontal axis we have taken quantity of the good concerned. The arrow from P0 to P1 shows that price increases. As a result, the quantity reduces from Q0 to Q1. This is an example that increase in price causes a decrease in the quantity demanded. Similarly, when there is a decrease in price from P0 to P1, the quantity demanded increases from Q0 to Q1. As a result, the curve that we receives for the law of demand is downward sloping. As we can see in both the diagrams, this is downward sloping demand curve. जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों ही चित्रों में हमने एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हुए दिख रहा है. If we allow all other factors means the factors other than price of the good, if we allow them to change, then either there will be a decrease in the demand or there will be an increase in the demand. These factors other than price are that one is change in the buyer's taste. That means अगर buyers की जो टेस्ट है या उनकी रुचि है उसमें परिवर्तन होता है. चेंज इन बायर्स इनकम, अगर बायर्स की इनकम में वृद्धि या कमी होती है. थर्ड पॉइंट इज चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते हैं या घटते हैं. फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि कुछ वस्तुएं जो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकती हैं, अगर उनके प्राइस में परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन होता है. मांग का बढ़ना या मांग का घटना भी हम एक ग्राफ या चित्र की मदद से समझ सकते हैं. जैसे कि आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें प्राइस P0 है, प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी Q0 से Q1 तक बढ़ सकती है, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स है जिनको अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जिनमें रुचियां हैं, टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जिसमें बायर की इनकम भी है, जिसमें नंबर ऑफ बायर्स का बढ़ना या घटना भी है, जिसमें प्राइसेस हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, अगर इन सभी में परिवर्तन होता है या इनमें से किसी एक में भी परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार मांग में भी वृद्धि हो सकती है. ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र है या डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. उसी प्राइस पर, सेम प्राइस पर पहले से ज्यादा मांग की मात्रा बढ़ी हुई. इसी तरह से अगर हम मांग की मात्रा का घटना डिस्कस करें तो यही सारे फैक्टर्स है जो मांग की मात्रा के घटने के लिए भी जिम्मेदार हैं. सेम प्राइस पर P0 इज द लेवल ऑफ प्राइस, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड Q0 से घटकर Q1 हो जाती है, और ऐसी स्थिति में मांग वक्र लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. इसको हम मांग में होने वाला परिवर्तन कहते हैं. यह परिवर्तन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है. अगर मांग बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर मांग घटेगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता हुआ. फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कॉल्ड शिफ्ट फैक्टर्स, क्योंकि इनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है दाईं तरफ या बाईं तरफ. और प्राइस को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फैक्टर, क्योंकि जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर सिर्फ प्राइस में होने वाले चेंजेस को देखते हैं तो मूवमेंट एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पर ही अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है. लॉ ऑफ डिमांड अथवा मांग के नियम के अलावा जो दूसरा मुख्य कॉन्सेप्ट है वह है लॉ ऑफ सप्लाई या पूर्ति का नियम. पूर्ति का नियम कहता है कि प्राइस बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और प्राइस कम होने पर पूर्ति कम हो जाएगी. अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, विल कॉज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड,
An increase in the price of a good, all other things held constant, will cause an increase in the quantity supplied of the good. इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करता है अगर हम इसकी तुलना लॉ ऑफ डिमांड से करें। ऐसा क्यों होता है, इसे समझ हमें सप्लाई प्राइस के अलावा उन सभी फैक्टर्स को भी समझना पड़ेगा जो उसकी पूर्ति को, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करते हैं। प्राइस के अलावा 3 अन्य फैक्टर्स हैं। चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अर्थात उस वस्तु के उत्पादन की तकनीक है। इसके अलावा चेंज इन इनपुट प्राइस, जो इनपुट्स या आगत या साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी वस्तु को बनाने में, उनके प्राइस में होने वाला परिवर्तन। चेंज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, कितने सेलर्स या कितने विक्रेता उस वस्तु को बाजार में बेच रहे हैं, उनके नंबर में होने वाला परिवर्तन भी किसी वस्तु की पूर्ति की कीमत को तय करता है। Law of supply says that when price reduces, the quantity supplied will also reduce, and when price increases, quantity supplied will also increase. इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को भी समझना पड़ेगा। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने की लागत उससे पूर्ववर्ती इकाइयों को उत्पादन करने की लागत से अधिक होती है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसी के कारण जब किसी भी वस्तु की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो वह केवल बढ़े हुए प्राइस पर ही संभव हो सकती है, क्योंकि उस यूनिट या इकाई की लागत पहले वाली इकाइयों की लागत से सदैव ही अधिक होती है। जिस प्रकार से चेंज इन डिमांड के फैक्टर्स थे, उसी प्रकार से सप्लाई में भी चेंजेस के फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स हमने पढ़े, जिनमें टेक्नोलॉजी है, इनपुट प्राइस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर इन फैक्टर्स में से किसी में भी बदलाव होता है तो सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि सेम प्राइस पर क्वांटिटी Q0 से बढ़कर Q1 हो सकती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि किसी नई तकनीक की वजह से लागत कम हो गई हो, जिसकी वजह से उसी प्राइस पर पहले से अधिक वस्तु की पूर्ति करना संभव है। तो तकनीक में परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है और इसके अलावा इनपुट कॉस्ट में स्वयं से ही किसी अन्य कारण से परिवर्तन हो गया हो तो भी वस्तु की सप्लाई प्रभावित होती है। सेम प्राइस पर वस्तु की सप्लाई अगर घटती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, और अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो राइटवर्ड कर्व शिफ्ट होता है। इनको ही शिफ्ट फैक्टर्स कहा जाता है। जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप का हमने अध्ययन किया, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड रिलेशन का अध्ययन किया। इसी तरीके से चेंज इन डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चेंज इन सप्लाई में भी प्राइस के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी वजह से सप्लाई कर राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है।